Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is absolute and strict liability under the tort law. In the course of today's video, we will understand what is absolute liability and strict liability as well as the distinction between both of them. Furthermore, we will be looking forward to the essential elements for absolute liability and strict liability individually, which will be followed up with the certain case laws. Now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of strict and absolute liability. Introduction. The definition of strict liability was first adopted in the late 1800s. It arose from the principle of incompetence, which commonly applies to reckless conduct. It entitles a duty of responsibility to one's neighbors with a violation of that duty resulting in harm to the neighbors. When the defendant is found to be negligent, he is said to be held liable to pay complainant for the damages incurred. In the contrast, under absolute liability, the defendant is found liable regardless of whether he was negligent or not. यहाँ पे सिंपली एक इंट्रोडक्शन दे के रखा है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब ये है कि वो कोई भी एक बंदा एक रेकलेस काम करता है जिसकी वजह से उनके नेबर या उनके आजू बाजू के लोगों को चोट पहुंचती है, उनको इंजरी होती है, उनको किसी भी प्रकार का एक हार्म होता है, देन जिस बंदे ने भी ये पर्टिकुलर काम किया है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी एंड ही विल बी मेड लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द एग्रीव्ड पर्सन्स. Whereas in the absolute liability यहाँ पे क्या बोला है कि रिगार्डलेस अगर वो बंदा नेग्लिजेंट था या नहीं था, अगर उसके ऊपर कोई भी ऐसा केस बनता है कि जिसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगती है तो वो नेग्लिजेंस का डिफेंस नहीं ले सकता. ये सब चीज़ें हम आगे डीप में समझेंगे. When an organization engages in the hazardous or fundamentally unsafe practice that causes injury to someone as a result of an event that occurs while the hazardous or inherently dangerous activity is being carried out. This makes the company fully liable to pay all the people who are harmed as a result of the crash, and that responsibility is not subject of any exceptions. Then it comes under the absolute liability. अगर किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी एक हजार्डियस या फिर कोई ऐसी अनसेफ प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर हजार्डियस या डेंजरस एक्टिविटी की वजह से किसी को भी चोट पहुंचती है, देन वो पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. ठीक है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी प्रकार के एक्सेप्शंस नहीं होते हैं. उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज अ लीगल कंसेप्ट दैट होल्ड्स अ पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस और प्रोडक्ट्स विदाउट द प्लेंटिफ हैविंग और टू प्रूव नेग्लिजेंस ऑफ फॉल्ट. When someone is involved in ultra hazardous activities such as keeping wild animals, using explosives, or making defective products, then they may be held liable for if someone else is injured. यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी प्रकार की आप एक्टिविटी करते हो जिसकी वजह से किसी और को चोट पहुँचती है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो गया या तो फिर आपकी कोई एक्शंस की वजह से किसी को चोट पहुँचती है, तो उस चीज़ के अंदर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी. ठीक है, एंड आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर के केस से अराइज हुआ था, जहाँ पे बोला गया है that where the defendants employed an independent contractor to construct a reservoir on their land, the contractors found disused mines when digging but they failed to seal them properly. They filled the reservoir with the water. As a result, water flooded through the mine shafts into the plaintiff's mines on the adjoining land. Here the House of Lords held that any person who allows dangerous element on their land which escapes and damages a neighbor will be liable. Here the claimant only needs to prove that tort occurred and that the defendant was responsible. It is not necessary to prove negligence on the part of the landowner from which the dangerous substance has escaped. यहाँ पे negligence को एक्सेप्शन में कुछ केसेस में माना जाता है, कुछ केसेस में नहीं माना जा सकता. कि ये पर्टिकुलर रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर के केस के अंदर जज ने यही बोला था कि ऐसी कोई भी सब्सटेंस या ऐसी कोई भी चीज़ जो अगर आपकी खुद की लैंड में है वो वहाँ से निकल जाती है या भाग जाती है या किसी और की प्रॉपर्टी पे वो पर्टिकुलर चीज़ डैमेज करती है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ को खाली इतनी ही चीज़ प्रूव करनी है कि एक टॉर्ट हुआ है और वो डिफेंडेंट ने किया है या डिफेंडेंट उसके लिए लायबल है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी.
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एसेंशियल्स है, पहले वो समझ लेते हैं. फर्स्ट है डेंजरस एंड हजार्डियस सब्सटेंस, कि कोई भी ऐसा डेंजरस है हजार्डियस सब्सटेंस जो कोई भी है उनके प्रेमाइसेस से निकल जाना चाहिए और किसी और को डैमेज होना चाहिए. ठीक है. दूसरा है एस्केप फ्रॉम द लैंड, की मतलब वो उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से निकल के भाग के किसी और की प्रॉपर्टी पे जाके किसी भी एक प्रकार का डैमेज करता है. ठीक है. उसके बाद आते हैं नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. ठीक है. इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट देयर मस्ट बी सम स्पेशल यूज और पर्पज विच इंक्रीजेज द डेंजर टू अदर्स. द यूज ऑफ सच लैंड्स बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ इट. यहाँ पे क्या बोला कि आप जिस पर्पस के लिए आपके पास वो लैंड है, आप उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए वो पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हो जिसकी वजह से किसी और को डैमेज होता है. ठीक है. जैसे कि वो रेनल्ड वर्सेस फ्लेचर वाले केस में भी यही हुआ था कि जहाँ पे वो पर्टिकुलर माइंस को प्रॉपरली सील नहीं किया था, इवन दो इट वाज अंडरग्राउंड रिजर्वो, उस चीज़ की वजह से प्लेंटिफ के जो माइंस थे एडजॉइनिंग लैंड के अंदर वो पूरे के पूरे पानी से भर गए. अल्टीमेटली वहाँ पे किसी भी प्रकार की अभी माइनिंग नहीं हो सकती है. तो ये नॉन नेचुरल यूज़ है. आप रेजर्वर क्रिएट कीजिए, ये कम्प्लीटली आपके राइट्स के अंदर आता है, बट उस चीज़ की वजह से आप किसी और को डैमेज करते हो तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी. उसके बाद है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की एप्लीकेशन. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन प्रोडक्ट डिफेक्ट केसेस. ठीक है. कि जैसे भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, जैसे कि डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन वाले केस में हमने टॉर्ट में पढ़ा था कि उसके बियर बॉटल के अंदर एक डेड स्नेल, एक इंसेक्ट मरा हुआ मिला था, जो कि आगे हम वापस से एक बार रिपीट करेंगे. वैसे कोई सिनारियोज होते हैं तो उन सभी चीज़ों में कंपनी को लायबल किया जाता है बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. दूसरा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन एनिमल अटैक केसेस. यहाँ पे कैसा बोला गया है दैट इन लॉ ऑफ टॉर्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हैज़ ट्रेडिशनली बीन अप्लाइड फॉर द डैमेजेस कॉज्ड बाय एनिमल्स because animals are not governed by law or conscience and those who keep animals have a duty to control them. In most instances, the general rule is that owner of all animals including domestic animals are strictly liable for damages resulting from the trespass of their animals onto the property of any other or any act done by them. कि यहाँ पे ये बोला गया कि जो कोई भी एनिमल ओनर है, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो या वो कोई और एनिमल हो, जो चीज़ उनको मतलब जो कोई भी बंदा उनको कंट्रोल में रख रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक में अच्छा बिहेव करे या किसी और को डैमेज ना करे या किसी और की प्रॉपर्टी में चला ना जाए. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस के ऊपर. ठीक है. इसमें गिने चुने कुछ एक्सेप्शंस है जिसके अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं एज अ डिफेंडेंट. तो आइए समझ लेते हैं. प्लेंटिफ का फॉल्ट, that if the plaintiff suffers damages by his own intrusion into the defendant's property, then all his rights to complain about the damages are so caused as nullified. यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि जिन जिन केसेस के अंदर एक प्लेंटिफ की गलती होती है वहाँ पे वो डिफेंडेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते जब उनका खुद का कोई पार्टिसिपेशन होता है, उनका खुद का कोई नेग्लिजेंस इन्वॉल्व होता है. दूसरी चीज़ आती है एक्ट ऑफ गॉड. यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड के अंदर क्या बोला गया है कि जो कोई भी एक्ट जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी है, जैसे कि अर्थक्वेक का आना, ठीक है, या तो फिर ड्रॉट का आना, या तो फिर एक वॉल्केनो का जाग जाना, ये सब चीज़ें किसी ह्यूमन बींग्स के हाथ में नहीं आती है. इस चीज़ की वजह से किसी और को डैमेज होता है या पर्टिकुलरली ये कोई चीज़ किसी और चीज़ को मोशन में डाल देती है जिससे आगे वाले बंदे को डैमेज होता है, तो उस चीज़ को हम एक्सेप्शन में ले लेंगे. इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. सीता एंड गीता आर नेबर्स हु लिव बाय द ओशन. गीता ग्रोज अ पॉइजनस बेरीज ऑन हर लैंड. ड्यू टू हाई टाइड सम बेरीज वॉश टू सीताज लैंड एंड कंज्यूम्ड बाय हर डॉग दैट डाइज. गीता इज नॉट लायबल एज शी फॉल्स अंडर दिस एक्सेप्शन. यहाँ पे भी यही बोला गया है कि इवन दो पॉइजनस बेरीज जो कोई भी है वो उसके खुद के लैंड तक ही सीमित थे, बट बिकॉज ऑफ सर्टन हाई टाइड्स की वो वहाँ पानी के फोर्स से दूसरी लैंड में चले गए. ये एक्ट ऑफ गॉड है. वो हाई टाइड का आना गीता के हाथों में नहीं था, इसलिए उसको एक्सेप्शन में माना जाएगा. Act of the third party. This rule also does not apply when the damage is caused due to the act of a third party. The third party means the person is neither servant of the defendant nor the defendant has any contact with them or a control over their work. If the act was done by such party, the plaintiff cannot claim his rights.
जैसे कि रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर वाले केस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो पर्टिकुलर चीज़ जो कोई भी रेजर्वोयर्स क्रिएट किए जा रहे थे वो कोई थर्ड पर्सन कर रहा होता, अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, कोई वहाँ पे आर्किटेक्ट आया था, कोई बिल्डर आया था, अगर वो ये सब चीज़ें कर रहा था वाइल डूइंग दोस एक्टिविटीज़, अगर जो फ्लेचर की लैंड है वहाँ पे कुछ, या सॉरी रेनल्ड्स की जो लैंड है वहाँ पे कुछ डैमेज हो जाता, तो उसके लिए वो बंदे इंडिविजुअली लायबल होते, ना कि डिफेंडेंट की जिसकी वो लैंड थी। चौथी चीज़ आती है कंसेंट ऑफ द प्लांटिफ। This exception follows the principle of voluntary non-fit injury. This means in the situations where the plaintiff has voluntarily consented to suffer the harm for the common benefit of both, the defendant would not be held liable. यहाँ पे भी यही बोला गया है कि अगर जब प्लेंटिफ खुद बोलता है कि जो कोई भी डैमेज होगा आई विल एबल टू बेयर इट, यू कैन गो अहेड एंड डू दिस पर्टिकुलर टास्क, उन सभी सिनारियोज के अंदर हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं मान सकते। इसमें हम लोगों ने टॉट के लेक्चर के अंदर काफ़ी बार वो बॉक्सिंग रिंग का एग्जांपल लिया था। यहाँ पे भी वही चीज़ से समझते हैं दैट जब कोई दो बंदे बॉक्सिंग रिंग के अंदर होता है तो जब बोला जाता है दैट अभी ये पर्टिकुलर चीज़ होने वाली है कि एक बॉक्सिंग का मैच होने वाला है, जब वहाँ पे प्लेंटिफ खुद बोलता है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है, कि मैं वॉलंटरीली यहाँ पे जब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उससे जो इंजरी होती है उससे हमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो ऐसे सब सिनारियोज के अंदर डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना जा सकता। बिफोर वी मूव एनी फर्दर, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ आवर वेबसाइट judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing, okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. Absolute liability. The rule of absolute liability in simple words can be defined as the rule of strict liability minus the exceptions in India. The rule of absolute liability evolved in the case of MC Mehta versus Union of India. This is one of the most landmark judgments which relates to the concept of absolute liability. The facts of these cases are that oleum gas leak in the particular area of Delhi from industry. Due to the leakage, many people were affected. The apex court then evolved the concept of the rule of absolute liability on the rule of strict liability, and stated that defendant would be liable for the damages caused without considering the exceptions of the strict liability rule. According to the absolute liability, if any person is endangered in inherently dangerous or hazardous activity and any harm is caused to any person due to the accident which occurred during carrying out such inherent dangerous and hazardous activity, then the person who is carrying out such activity will be held liable. इस एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब ये होता है जब कभी भी, जैसे कि वो ओलियम गैस लीक हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस के अंदर, कि जहाँ पे अराउंड 2600 पीपल वर अफेक्टेड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर गैस लीक, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मर गए थे। आज भी काफ़ी सारे लोगों में ड्यू टू दैट गैस लीक डिफॉर्मिटी अवेलेबल है। उस चीज़ के अंदर कोर्ट ने यही बोला था कि जब कभी भी ऐसी कुछ चीज़ या फिर ऐसी कोई घटना बनती है तब यही माना जाएगा कि वहाँ पे किसी भी प्रकार के स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस नहीं हैं एंड इस चीज़ को एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी में माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी के एसेंशियल्स के ऊपर। सबसे पहला होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ डेंजरस होनी चाहिए। खुद की प्रॉपर्टी से भाग के उसने किसी भी प्रकार का एस्केप करके आजू बाजू के लोगों को बहुत ही गंदा इफेक्ट दिया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे रखें, जैसे कि वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाइब्रेशंस, सूएज एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें जब आपकी प्रॉपर्टी से बाहर निकलती है विथ अनकन्वेंशनल वे या आपकी गलती की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से, तब किसी और को डैमेज होता है, तो उस चीज़ को हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी का फर्स्ट एसेंशियल मानेंगे। सेकेंड वुड बी एस्केप, कि वहाँ से पर्टिकुलर चीज़ जो है वो दौड़ के या फिर भाग के कहीं और जानी चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक केस लॉ है, रीड वर्सेस लाइनेंस एंड कंपनी।
where the plaintiff was working as an employee in the defendant's company, which was engaged in manufacturing shells. The accident happened while she was on her duty that day within the company's premises. It happened when a piece which was being manufactured there exploded, and due to which the plaintiff suffered harm. After this accident, a case was filed against defendant's company, but the court eventually let go the defendant and gave a verdict that strict liability is not applicable here in this particular case. This was declared by the court because of the explosion that took place was within the defendant's premises and not outside. The concept says that it should have escaped the dangerous things like shell here from the boundaries of the defendant premises, which didn't happen. यहाँ पे ये बोला गया है कि नेग्लिजेंस प्रूव हुआ था कोर्ट, मतलब यहाँ पे भी यही बोला गया है कि नेग्लिजेंस प्रूव नहीं हो पाया था कोर्ट के अंदर. सेकेंड थिंग कि वो पर्टिकुलर शेल जो एक्सप्लोड हुआ था वो प्रॉपर्टी से एस्केप नहीं हुआ था. वो जो कोई भी एक्सप्लोजन था, जो कोई भी घटना बनी थी, वो पूरा का पूरा कंपनी के प्रेमाइसिस के अंदर था. इसके लिए अल्टीमेटली उनको अपील के अंदर कहीं और से डैमेजेस मिल सकते हैं, लेकिन खाली डैमेजेस, कंपनी के ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी. और अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती तो उसके ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी हम इम्पोज नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि एस्केप होना बहुत ज़रूरी है. थर्ड वुड बी नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड. ये हमने आगे भी देखा था कि जहाँ पे नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे भी देखिए एक रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर का एग्जांपल वापस से लिया गया है. दैट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड बाय कीपिंग इन माइंड दैट सराउंडिंग लोकल सोशल कंडीशंस. As the growing of trees and plants on his land is considered as a natural use of land, but if one starts to grow trees which are poisonous and in nature it will be considered as a non-natural use of land. ठीक है कि आप कैसी और कोई भी सब्सटेंसेस वहाँ पे उगाते हो जो कि कॉन्ट्राबैंड है, जो सरकार ने बोले हैं कि ये इलीगल है, वैसा कुछ आप यूज़ करते हो लैंड का पेड़ उगाने की जगह पे, तो उस चीज़ को हम नॉन नेचुरल यूज़ बोलेंगे. इवेंचुअली ये एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का एसेंशियल है. उसके बाद मिसचीफ. To make a person liable under this principle, the plaintiff at first needs to show that the defendant had done the non-natural use of land and escaped the dangerous thing which he has on his land, which resulted the injury further. यहाँ पे भी एक केस लॉ है, Charing Cross Electric Supply versus Hydraulic Power Company. The defendant was assigned to supply water for industrial works, but he was unable to keep their mains charged with the minimum pressure that was required, which led to bursting of the pipeline at different places. This resulted in causing heavy damage to the plaintiff, which was proved by in the court of law. The defendants were held liable. In spite of that, they were not at fault. These are the few rules where the doctrine has applied. कि यहाँ पे भी ये बोला है कि मिसचीफ मतलब कुछ उनसे ऐसा गलत काम होना चाहिए, उनका कुछ ना कुछ एक थोड़ा हल्का सा भी रोल होना चाहिए. मतलब यहाँ पे भी ये केस लॉ के अंदर भी डिफेंडेंट ने टेक्निकली हर वो चीज़ की थी जिसके वजह से ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो, बट फिर भी हुई. अल्टीमेटली दे वर हेल्ड लायबल. ऑलराइट. एंड ये पर्टिकुलर चीज़ कुछ एक जगह पे अप्लाइड हुई है. ठीक है, जैसे कि अभी फिर आ जाते हैं हम लोग इवोल्यूशन के ऊपर. तो सबसे पहला आता है भोपाल गैस लीक, द यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. This doctrine was upheld in the infamous Bhopal gas tragedy case which took place between the intervening night of 2nd and 3rd December 1984. कि जहाँ पे मिथिलिन आइसोसाइनाइड पॉइजनस गैस जो एक यूनियन कार्बाइड कंपनी की थी मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर एक लीकेज हुआ था जिसकी वजह से अराउंड 3000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. ठीक है, वहाँ पे हैवी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हुआ था. द फ्लोरा एंड फोना मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी काफ़ी हैम्पर हुआ था. चिल्ड्रंस आर ऑल्सो अफेक्टेड एंड काफ़ी सारे लोग डिफॉर्म भी बॉर्न होते हैं आजकल. ठीक है, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी को इम्पोज किया गया था और यहीं से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अप्लाई करना शुरू किया था और विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन मिलना भी शुरू हुआ था. उसके बाद है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. अ PIL was filed under the Article 32 of the Indian Constitution voiced protest of petitioners over the presence of the industries that were causing large-scale environmental pollution and endangering the lives of the villagers who resided in the vicinity of the industries. It violated their right to life and liberty given under Article 21 of the Indian Constitution as they were unable to live a healthy life. The Supreme Court initiated an instant action and ordered the central government and the Pollution Control Board to consider strict measures against the said industries. कि यहाँ पे जो कोई भी पॉल्यूशन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा था उनके सामने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे
बाय इम्पोजिंग एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और उस चीज़ को करने का जो कोई भी एक्सपेंडिचर था वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज़ के पास से कलेक्ट किया गया था, कि जहाँ पे उनको मॉनेटरी डैमेजेस भी पे करने पड़े थे टू रिस्टोर द एनवायरनमेंट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. Klaus Mittelberg versus East India Company 1990, East India Hotels 1997. In this case, the plaintiff, a German co-pilot, suffered a grave injuries after diving into the swimming pool of the five-star restaurant. Upon the investigation, it was seen that the pool was defectively designed and had an insufficient amount of water as well. The pilot's injury left him paralyzed, leading to death after 13 years of the accident. The court held that the five-star hotels that charge hefty amounts owe a high degree of care to its guests. This was violated by the Hotel Oberoi International Continental New Delhi when the defectively designed swimming pool left a man dead. This hotel made absolutely liable for the payment of damages. The hefty amounts taken from the guests by the hotel owners guaranteed them to pay exemplary damages. Although in such further cases, it was decided the plaintiff would receive 50 lakh rupees for the accident caused. यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ऐसा बोला गया था दैट जब कभी भी इतना आप हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हो टू प्रोवाइड अ गुड सर्विस, ए ग्रेट सर्विस, इफ आई एम गोइंग टू नोट दैट, देन you should be able to justify the amount of money that you collect by giving you great services. अगर आप एक ख़राब स्विमिंग पूल दोगे जिसमें पानी कम है, जो पुअरली डिज़ाइंड है, तो अगर जब कोई बंदा उसमें एक लंबी हाइट से छलांग मारेगा तब वो मर ही जाएगा, है तो उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाएगी. तो तब यहाँ पे कोर्ट ने भी यही बोला दैट इसकी जगह यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी को इम्पोज किया जाएगा. डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी. In absolute liability, the destruction is a mass destruction. The strict liability, the destruction is restricted to a certain level. Absolute liability के अंदर एक बहुत ही लार्ज स्केल के अंदर लोगों को इफेक्ट होती है, जैसे कि ओलियम गैस लीक के अंदर काफ़ी सारे लोगों को इफेक्ट हुई थी. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अफेक्टेड. वाइल इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कुछ गिने चुने लोग ही इस चीज़ से इफेक्ट होते हैं. इन एब्सोल्यूट लायबिलिटी देयर इज नो डिफेंस अवेलेबल फॉर द डिफेंडेंट, वेयर इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमारे पास 3-4 डिफेंसेस हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कि प्लेंटिफ ने ही काम गलत किया था, दैट थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन था, एटसेट्रा. In absolute liability, the compensation paid to the plaintiffs determined on the basis of the financial stability of the company, causing the action that gives the rising to the absolute liability. In strict liability, however, the compensation is determined by the nature and the amount of damage has been caused. एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर जो कोई भी डैमेज कोर्ट डिसाइड करती है वो कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर डिसाइड करती है. वेयरएज इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जिस प्रकार का वहाँ पे नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना कॉम्पनसेशन सही रहेगा. इन एब्सोल्यूट लायबिलिटी इट डजंट रियली मैटर वेदर द हार्मफुल सब्सटेंसेस एस्केप. इवन इफ एनी हार्म इज कॉज इनसाइड द प्रेमाइसेस द डिफेंडेंट विल बी स्टिल हेल्ड लायबल, जैसे कि वो होटल वाले केस के अंदर हुआ था, न्यू ओबरॉय होटल कॉन्टिनेंटल को. However, in the case of strict liability, escape of the harmful substance is essential element, कि जहाँ पे escape होना ज़रूरी है तो ही ना तो ही उस चीज़ को हम strict liability मानेंगे. Alright? By this slide, our lecture is effectively over. I hope you guys have understood each and every part of it. Please subscribe to our YouTube channel and please connect to us via Instagram and our Telegram channels, through which you will get daily updates for videos like this, as well as you will find a lot of descriptive answers and MCQs on our website, which will be very helpful to you if you are preparing for any kind of competitive exams or even preparing for the exams for your law schools. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.